1:45 का टाइम हुआ चाहता है तो मेरे मियाँ घर आ भी गए। पता कितने बजे गए थे? हैं 11 बजे गए, नहीं 11:30 घरों गए सारे। तो हुण दरवाजा लगता है कि ओही ने जिवें गलत ना होई। पक्की गल है ये बाहर चाबी लगन की निशानी तो दरवाजा बंद करन की निशानी मेरे मियाँ की है। हेलो देखा नहीं मेरे अस लुकवान तो नहीं है, लुकवान नहीं कहता। वालेकुम सलाम। मैनू पता तुसी हो क्योंकि चाबी जी लाते ना बाहर ओदी निशानी मैनू पता। तुसी कहन चाबी लाते दरवाजे की। अच्छा लुकमान जी तो आंदा वो कहन चाबी लांदा है। मैं कर रही दरवाजा बंद करने का तरीका तजर्बे करती लभ गया। दूसरा पैकेट जेड़ा वो कल मिलना, कल तो नहीं खैर कल तो इतवार है ना। चलो ऐ तो खोलो। नाज़रीन पता की जे फिर तमहीद बनन गया अपनी चीज दी। नहीं ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ। ਫਿਰ ਈਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ, ਈਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਇਸ ਸਭ ਇਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਮਹੀਦ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਕਸ ਤੇ। ਬਾਕਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਤਮਹੀਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਰ ਲਾ ਕੇ। ਖੋਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਬਗੈਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਕਸ ਵਾਲਾ ਮੰਗਾਣਾ ਮੈਂ ਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ ਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਦੋ ਪਾਸੇ ਖੋਲੋ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਟੁੱਲਾ ਬਰਤਨ ਵੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਵੇਖੋ ਵਾਹ ਤਾਰ ਸ਼ਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸੈਲਡ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਲਨ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਲਨ ਆਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ ਇੰਝ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਬਣੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਝ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਵਲ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨੂਡਲਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਗਏ ਚਮਚੇ ਨਿਕਲਣ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਡੱਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਮਚੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੈ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 18 ਯੂਰੋ ਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਹੈ ਸੀ 35 ਯੂਰੋ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਚੇ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਦੇ ਧੋ ਲਵੋ ਤੇ ਲੈਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਵੇ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਸਟੀਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਸ਼ਾਰ ਜੋ ਵੀ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 5-10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ 10 मिनट पहले बंदा ला छड़ता तार शार। चलो चलें जी इसको पैक तो नहीं करना इसको मैं किचन में जाके मशीन में रखूँ जरा वाश वुश करूँ तो फिर मैं इनको खाना दूँगी। नहीं आज तो नहीं मैं लेके जाना कुछ नहीं आज तो तुसी मैं तन्नू खवा के घल्लिया कि तुसी फिर खाना आए हो चाह तो पीवांगे ना। चल चाह पियो तो फिर तुसी कल खाना लेके जाओगे। बिल्ली आती मेरी बिल्ली जाने का कह रही है आप बहुत अच्छी। हाँ जी क्या कह रही हो? मैं बानहाइट जा रही हूँ। क्यों? आप उसकी दोस्त आ रही है आपसे बहुत अच्छी है। चलो जी तो किचन से चलिए। स्कार्फ मेरा ये देखें कोट जैकेट मैंने पहन ली है स्कार्फ मैं ऊपर से लेके आई हूँ पर्ल वाला फैंसी। ये मेरा छोटू सा बैग आज हेलो उठ जाओ मैं क्या
ਹੈ ਉੱਠ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਸਮ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਣਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਿਆ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰਜਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਚਲ ਆ ਜਾ ਆਫੀਆ ਅਬੇ ਬਹੁਤ ਆਫੀਆ ਲਾਫੀਜ਼ चलें जी मैं जरा मार्केट जाने लगी हूँ आज बड़ा अच्छा वेदर है मैं कहा सारे बच्चे घर हैं वेखे ना मौसम अच्छा भी अज है अज धुप सुबह की धुप भी निकली सी ऐसे मेरा प्रोग्राम बन गया मैंने लगता जो तक मैं जाना ना उदों तक वैसे ही बदल शदल आ जाना इधर धुप है वे इधर नहीं है जैकेट कितने तेरी नहीं ठंड सी लगन दे मेनू जैकेट ते पा के आया करो ना गरम जिसम लेके बाहर निकलने फिर कहना मोटे ठंडे लगते ठंड लग गई मोटिया जवान यार बंदियां नू ठंड जवान चल भज के जा भज के मैं आनी चलो जैकेट इतनी ठंडी हवा चलन दी हां ओरिजिनल गल है मेनू अल्लाह दी कसम ठंड लगदी दौड़ के जा तो बाद च कंधियां नू कहना दर्द हुंदी ओहो हाल है कोई वैसे चलें जी इन्होंने मैनू उत्थे जाके तुसी ना मैनू उतार दिओ ਵਿਆਹ ਚ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਣਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਆਉਂਦਾ ਬੈਲ ਮਾਰ ਲਿਓ ਹਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਨਾ ਜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਜਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਸੂਰਜ ਹੈ ਇਹ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਚਲ ਕੱਢ ਲਓ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਚ ਠਾਰ ਦੇਣਾ ਵੇ बिस्मिल्लाह स्टॉप हाँ लगी ठंड दौड़ लाई सी हाँ ठंड ते है वे लाजमी कल मैं तुम कहन दिया हां लेकिन वो वाली नहीं है हाय मर गए नहीं वही वाली जिदू तुस झट ठहरो फिर वही हुंदी है हां वो नहीं पता सामने कार अच्छा जी हुन तुम किथे लाना मैं मैनू आप नहीं पता वे नहीं है तू तुरे चलो ना सोचनी फिर दसनी है तानू चलो बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह जी हां बड़ा ठंड ते है ना वेखो भावे सूरज निकले आवे अरे जनाब कितनी बर्फ पई स राती बर्फ ढेरी ते नहीं लगी इत्थे ते कोई नहीं पई है कि तू होरो आ खलोती बेचारी है भी माइंस दी गड्डी है मैं कि तू होरो आई नहीं कि तू होरो भी आई हुंदी ते वो राह दे विच सारी उड़ जानी सी नहीं नहीं उड़ ते नहीं जानी ओते ते छत भरी पई है साडी ते इतनी बर्फ पई भी नहीं कि इत्थे खलोती होवे ते जम जावे कि मैं फ्रिजा च इतनी बर्फ नहीं पई जिन्नी खा छड़ी हां सही ਲੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਵੀ ਛੜੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸੀ ਯਾਰ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਾਰਡਨ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਲੋਕੇ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਾਈ ਹੈਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 80-85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ लेकिन तुसी जान ला पवो ना ते फिर तुसी थोड़ा करदे ना तुसी अपना गार्डन जिवें मैं अपना गार्डन ही साफ सुथरा रखिया नहीं उन जांदा कि आउटिंग जो हो जांदी ना बच्चे लेके चले जाओ ग्रिल कर लो ओथे तुसी ए भी ते देखो ना सिर्फ ग्रिल ही नहीं कर लवो तुसी ओथे एक पाकिस्तान मंजी लियाओ हां ओथे मंजी उठाओ फिर ओथे तुसी लकड़ी दा नहीं मिट्टी दा चूल्हा बनाओ तुसी ओथे तंदूर बनाओ इस तरह दी चीज़ां तुसी बना सकदे हो ना तुसी अपने गार्डन दे बनानी आंदियां तानू मैं तेनू आज तक बनाई रखा है पागल उल्लू बाटा उल्लू किन्नी तुसी है हाई सुनना कि गरम गड्डी का छड़ी गरम हो गया मैं करती बंद मैंने मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਟਨ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੋ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਿਸ਼ਟੂ ਫੜ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ठीक है जनाब किथे करके लाना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੋ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਉਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਵਾਂ ਗਾਣੇ ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਲਾਣ ਲੱਗਾ
हाँ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ। हाँ चलो सही ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭਾ ਨਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। अल्लाह हाफिज। कुछ ਹੈਲੋ ਲੈ ਆਇਓ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਹੈਲੋ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं कुछ भी नहीं लेना है, मैं और कोई काम करना ही है। चलो बड़ी बदीद हो जानी। सही जनाब, अल्लाह हाफिज। चलो जी वो नहीं इस जगह पे जाते हैं। सेल लगे क्विक पे, सेल के लगे हुए हैं बाहर बैनर्स। अंदर चलते हैं, अपना नंबर वेखने जे मेरे नंबर च होई तो ले लांगे, नहीं तो खिसक जावांगे हैं। इनके शूज़ बड़े अच्छे होते हैं, कंपनी के होते हैं ना, ज़रा चुभते नहीं है, पाँव नहीं खाते। अच्छा जी, यहाँ पे मैं क्विक शूज़ की जो मार्केट है ना, इसके मैं अंदर आई हूँ। मुझे ये था बड़ी सेल लगी हुई है इस मार्केट में ना। जब गर्मियों की समर की होती है ना सेल, चप्पलें और ये और वो बहुत प्यारी होती है और देखने में भी अच्छी लगती है और लेने का भी दिल करता है। और सर्दियों की चीज़ें आपको मैंने पहले ही बोला, मुझे पसंद ही नहीं इतने शूज़ मोटे मोटे बड़े बड़े, जर्सी जैकेट्स वगैरह। मुझे ना विंटर की शॉपिंग करनी पसंद ही नहीं है। तो ये देखिए ना, इस तरह के आपको पता शूज़ कहाँ आपको अच्छे लगने हैं, दिल आंखों को अच्छे लगते ही नहीं है। तो मैं बस आगे आगे से चक्कर मार के निकल आई हूँ। मुझे कोई इतनी ख़ास चीज़ें पसंद आई नहीं है जो मैं कहूँ कि हाँ वाह जी वाह ये मेरा दिल कर रहा है मैं ले लूँ, ये मेरा दिल कर रहा है ले लूँ। कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। तो खैर इसके भी 2 हिस्से हैं, ऊपर नीचे। और सीढ़ियों ऊपर जो बच्चों का था, मैं अगर ना पसंद है बच्चों का ज़रूर चक्कर लगाती हूँ, लेकिन कल मेरा वो भी लगाने को दिल नहीं किया। मैं क्या वहाँ पे भी जाके इसी तरह की चीज़ें मिलनी है। तो मेरे पास ये बच्चों की ना विंटर की चीज़ें थी। तो मैं उसके बाद आ गई हूँ डीएम में आने के लिए सिर्फ एक ही मकसद है। एक तो मुझे परफ्यूम लेनी थी, उसकी वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजी थी विशाल ने, और सेकंड यहाँ से मैं लेने आई हूँ क्या कहते हैं टैबलेट जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, अभी वाइटामिन की जो होती टैबलेट वगैरह ना, वो मैं इधर से लेती हूँ डीएम से। वो मैं चूज़ करने लगी थी कि मैं कौन सी लूँ। जो मैं यूज़ करती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी जो मैं लेके आई हूँ। तो खैर मैंने रोज़मर्रा से ली थी ना, वो मुझे यहाँ मैंने ख़त्म होने वाली थी। मुझे ये था सेम टू सेम यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन मैंने कोई नहीं यहाँ से ली। मैंने कहा चलो रोज़मर्रा से वहाँ से ले लूँगी क्योंकि मैंने वहाँ की यूज़ की हैं। तो यहाँ से जो एक स्प्रे है ना, परफ्यूम ही कह लें, वो मैं उठाने आई हूँ। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये मुझे ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया, समझ नहीं आ रही थी कहाँ पड़ी है। तो खैर इसकी जो मैंने पहले पैकिंग गलत वाली उठा ली और अब ये वाली ले ली है ना जो उसने मुझे भेजी थी। अच्छा अपनी चीज़ा बंदा तुसी भुल जाते हो, यकीन करो मैं लेने कुछ आती हूँ कि पीछे से मुझे कोई व्हाट्सअप कर देते ना, मैं उसकी चीज़ें उसके पीछे लग जाती हूँ कि ढूंढ लूँ ले लूँ। तो खैर इसके बाद मैं आई हूँ खौफ ऑफ, यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा सेल लगी है, मैंने देखी थी हाई गैलरिया खौफ ऑफ। हाँ यहाँ पे काफ़ी जगह पे तो ये वैसे ही बंद हो गई, हमारी तरफ अभी खुली है। तो मुझे बड़ा सुनने को मिल रहा था ये भी बंद हो जाने पर, अभी तक वो चल रही है। तो ये स्कार्फ वगैरह काफ़ी महंगे लगे हैं, काफ़ी कॉस्टली हैं। अब तो वही ना बात के बंदा किस चीज़ को हाथ लगाए किसको नहीं। तो खैर यहाँ पे मैं आपको बैग्स की वैरायटी दिखाती हूँ जो मेरे हर बैग मेरे दिल को भा जाता है। हर बैग मैं कहते बैगों के लिए ना कहते ना कि तुम केड़ी फेवरेट चीज़ है जी तुम बड़ी पसंद है, तुम फौरन कहो। मैं बैग के ऊपर मुझे ना मेकअप का इतना लगाव है कि मेकअप कोई नई चीज़ आ रही, कोई नई लिपस्टिक आ रही, कुछ मैं उठा लूँ, ऐसे नहीं है। जैसे मेरी बेटी को बड़ा शौक है डीएम में चली जाए या वो ऐसी मार्केट में जाए जहाँ मेकअप वगैरह, तो वो तो उसकी टोकरी भर जाती है, उसको इस तरह की चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है। और मुझे हैंड बैग्स का बड़ा ही शौक़ है। मैं ना उनकी जो भी वैरायटी आती है ना किसी भी मार्केट की तो मुझे पसंद आती, छोटे साइज़ की बड़े साइज़ की। खैर फुल साइज़ नहीं, क्योंकि पहले मैं बहुत बड़े बड़े साइज़ के लेती थी जब आफिया फ़ान छोटे थे ना, तो उनकी चीज़ें भी डालनी होती थी। तो वो अब मुझे होता है मीडियम साइज़, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, जितना कि मेरे हाथ में इतना का साइज़ मुझे पसंद है ना। तो ये मैं बैग आपको दिखाते दिखाते कल मुझे एक कमेंट आया था मुझे कहाँ पे यूट्यूब पे, साथ शायद मैं लगा भी दूँ ना भी लगाऊँ तो मैं बता देती हूँ। उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा एक टॉपिक दिया था कि आप ना जो पाकिस्तान जो हमारे बच्चे हैं, जहाँ जैसे मेरे बच्चे हैं इतने जैसे आप सबके बच्चे हैं, तो शादी वगैरह का वो कह रहे थे बोलें कि कहाँ पर करनी चाहिए, पाकिस्तान में शादी करनी चाहिए या जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर करनी चाहिए। अच्छा मैं आपको बताऊँ जो मेरा तजर्बा है ना, जो मैंने इर्द गिर्द अपनी फैमिली में या इधर जो भी जहाँ पर रहते हैं अब देखते रहते हैं, आजकल के बच्चों की जो डिमांड है ना वो ये होती है
ख़ास तौर पर जर्मन में। दूसरे कंट्री में जैसे यूके में, इंडिया कह रही हूँ, कनाडा, अमेरिका, जहाँ इंग्लिश चलती है वो तो पाकिस्तान से ला के कर सकते हैं शादी, क्योंकि उनको इंग्लिश आती है। अगर जर्मनी में आप बोलें या इटली में या स्पेन में, या जहाँ ये यूरोप के जो इलाके कंट्री हैं, इलाके हाथ मुकी पे हैं, तो इन बच्चों को ना चाहिए कि अपनी लैंग्वेज वाली पाकिस्तानी हो, लेकिन यहाँ की हो, जिसको अपनी डोइच जर्मन ज़बान आती हो। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हम लोगों ने ना बड़ा फेस करते हैं अपने माओं को देख के, जैसे मैं माँ हो ना, वो कहते हैं फेस करना पड़ता है। क्योंकि अगर डोइच ही नहीं आ रही साथ वाली को, तो बाहर निकलने की हर जगह पे जाके, ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान से आप ले आते बहू बना के, तो उसके लिए, वो लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है, जो लड़का तो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। तो बेहतर ये होता है कि आप जहाँ रहते हैं वहीं पे ढूंढे जिनको लैंग्वेज भी आती हो, जो वो सेट भी हो प्रॉपर, उनको सारे कानून का भी पता हो। वो आपके अगर लड़की है तो आपके लड़के के साथ बराबर वो उसको क्या कहते हैं ना, मियाँ बीवी बन के अच्छा वो चला सकते हैं। तो अगर लड़का है तो फिर वो तो और ही अच्छा होता है, आपकी बेटी के ऊपर कम प्रेशर आएगा है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि अगर आपने बच्चों की शादी करनी है तो पाकिस्तान से बजाय यहाँ पे ही करें जिनको लैंग्वेज आती है। मैंने बोला ना दूसरे कंट्री जहाँ इंग्लिश चल जाती है, पाकिस्तान में तो आपको तो बच्चियों को इंग्लिश आती है, वो तो आप सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ जर्मन ज़बान है, वहाँ पे पाकिस्तान से ला के बड़ा मुश्किल है। बच्चियाँ बड़ी फेस करती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उनके लिए। जैसे मैं पाकिस्तान से आई हूँ, बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे आके आपको सेट होना। उनकी ज़बान इतनी टफ है, बहुत औखा लग रहा है। तो खैर यहाँ पे मैं घर आई हूँ तो मैंने जल्दी से आलू की भुजिया बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। क्योंकि मैंने बना के कुछ गई नहीं थी, नाश्ता करवा के ले चले गई थी ना। तो मैंने कहा चलो मैं अंडे की ना भुजिया बना, मेरे शौक से बच्चे खा लेते, अभी पराठे बनाऊँगी, रात का टाइम है, दमुक्की पे हैं। मैंने कहा ठीक है, अभी एक बार चलता है ऐसे हैं। चलो जिथे मैनू तो वो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।